1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, कोलोशियंस 4 चैप्टर 2 वर्स से 18 वर्स तक, आइज़ाया 52 चैप्टर 53 चैप्टर। 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, कुलोसियों की पत्री 4 अध्याय 2 वचन से 18 वचन, यशायाह की भविष्यवाणी 52 अध्याय 53 अध्याय। हम पढ़ेंगे हिंदी में, इंग्लिश में हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। कोलोशियंस 4 चैप्टर 2 वर्स से पढ़ेंगे 18 वर्स तक। इंट्रोडक्शन, ही exhorted to be fervent in prayer, to walk wisely. Sun-dry salutations, फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे। Masters, give unto your servants that which is just and equal, knowing that you also have a master in heaven. Continue in prayer and watch it the same with thanksgiving. Withal praying also for us that God would open unto us a door of utterance to speak the mystery of Christ, for which I am also in bonds, that I may make it manifest as I ought to speak. Walk in wisdom toward them that are without, redeeming the time. Them that are without, redeeming the time. Let your speech be always with grace, seasoned with salt, that ye may know how ye ought to answer every man. All my state shall Tychicus declare unto you, who is a beloved brother and a faithful minister and fellow servant in the Lord, whom I have sent unto you for the same purpose, that he might know your estate and comfort your hearts. With Onesimus, a faithful and beloved brother, who is one of you, they shall make known unto you all things which are done here. Aristarchus, his fellow prisoner, saluteth you, and Marcus, sister's son, to Barnabas, touching whom ye received commandments, if he come unto you, receive him. And Jesus, which is called Justus, who are of the circumcision, these only are my fellow workers unto the kingdom of God, which have been a comfort unto me. Epaphras, who is one of you, a servant of Christ, saluteth you, always laboring fervently for you in prayers, that ye may stand perfect and complete in all the will of God. For I bear him record that he hath a great zeal for you, and them that are in Laodicea, and them in Hierapolis. Luke, the beloved physician, and Demas greet you. Salute the brethren which are in Laodicea, and Nymphas, and the church which is in his house. And when this epistle is read among you, cause that it be read also in the church of the Laodiceans, and that ye likewise read the epistle from Laodicea, and say to Archippus, take heed to the ministry which thou hast received in the Lord, that thou fulfill it. The salutation by the hand of me, Paul. Remember my bonds. Grace be with you. Amen. Written from Rome to Colossians by Tychicus and Onesimus. कुलोसियों की पत्री 4 अध्याय का 2 वचन से लेकर 18 वचन तक पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आपने हमारे सहायता कर रहे हैं। पवित्र आत्मा
आपकी अगुवाई हो हम पर, और बड़े गहराई में खुदा आप हमें वचन सिखाइए खुदा। आपके बिना कुछ मतलब नहीं बनता है। हमने वचन पढ़ने से, हमें सिखाने वाला तू ही है पवित्र आत्मा। नहीं तो ये वचन सिर्फ वचन रहेंगे और हम इसका कुछ भी लाभ नहीं ले पाएंगे। हमारी मदद करो पवित्र आत्मा, हमारी समझ खोलो और ये वचन हमारे अंदर काम करते और हम परमेश्वर को महिमा करते हुए जीवन में उपयोग कर पाए। नासरी यीशु के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। कुछ व्यवहारिक सलाह। प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो, और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके जिसके कारण मैं कैद में हूँ, और उसे ऐसा प्रकट करो जैसा मुझे करना उचित है। एक बात ध्यान रखना है यहाँ पर, हम यहाँ पौलुस अपने आप को कैद में है कह रहा है। ओके, कैद में है, इसका मतलब क्या बन जाता है? जब आप जॉब करते हैं, आपके बॉस के आप कैद में बन जाते हैं 8 घंटे के लिए या 6 घंटे के लिए, जो भी आपका ड्यूटी आवर्स है उसमें, उसके अंदर आप मनमानी नहीं कर सकते हैं। उसके अंदर आप अपने पैशंस लेके नहीं चल सकते। उसके अंदर आप अपने हॉबीज़ को लेकर नहीं चल सकते। उसके अंदर आप अपने पर्सनल लाइफ के मैटर्स लेके नहीं चल सकते। उसके अंदर आप केवल और केवल आप और आपकी कंपनी के उद्देश्य, जो आपके बॉस आपसे करवाना चाहता है, पूरा उसकी मर्जी जो करवाना चाहता है, बस उतना ही सीमित रहता है। तो आप क्या फिर उस वक्त क्या आप पैशंस नहीं रहते हैं? क्या रहता है? कुछ खाने पीने का मन नहीं होता है कि होटल में घूम कर आने का? क्या कुछ तो अच्छे से कुछ रेस्टोरेंट में बैठ के खाने का, गार्डन में घूमने का, साइकिलिंग करने का, बाइक चलाने का, कार चलाने का, ओके, या फिर कुछ तो पार्टी मनाने का, या कुछ कहीं तो आराम से एक वीकेंड मना के आ जाने का। ये क्या उस समय होता नहीं है? क्या आपके अंदर पैशन? मौसम अच्छा है, आराम से सोने का, ओके, अच्छा समय लग रहा है घर के फैमिली के लोगों के साथ बिताने का, क्या उस समय वो मौजूद नहीं रहता है? क्या रहता है? ड्यूटी आवर्स में भी आपके पास ये सब कुछ आपको तलब आ जाती है, ओके, कि आप परमेश्वर के आप अपने घर के लोगों के साथ समय बिताएं, आप परमेश्वर के वचनों में समय बिताएं, आप कहीं घूम फिर कर आ जाए, ओके, आपको जो पसंद है वो चीज़ें आप करें, ओके। वो आप ड्यूटी आवर्स में भी आपको ये टच करता है ख्याल, और तब आपके मुंह से क्या आ जाता है कि काश आज अगर मैं ड्यूटी पर ना होती तो मैंने तो बस ये तो मज़े लिए होते ये समय का, ओके। तो ये सारा चीज़ आप क्यों मज़े नहीं ले पाते हैं? जब आपके अंदर ये टच हो रहा है कि ये समय का हमने कुछ अच्छा आनंद लेना है, तो फिर आप वो क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि आप बंधे हुए हैं बॉस के साथ और कंपनी के साथ, आप बंधे हुए हैं, और उतने घंटों में आप अपने सब कुछ बंधी बांध कर, जो भी आपका पैशन है, घर है, परिवार है, पसंद है, नापसंद है, सब कुछ बांध कर आप अलग रखते हैं। ज़बरदस्ती मार कूट कर उसको अलग कर देते हैं, और सिर्फ बॉस क्या चाहता है और कंपनी के लिए क्या करना है उतना ही आप ध्यान देते हैं, ओके। तो आपका माइंड जो है, आपका नॉलेज, आपका विजडम, आपका ज्ञान, आपका बुद्धि, आपका समझ सिर्फ और सिर्फ आप बॉस के फ़ायदे में और कंपनी के फ़ायदे में ही चलाते हैं उस 8 घंटे के अंदर, जो भी आपका ड्यूटी आवर्स है उसके अंदर, ओके। उसके बीच में आप कुछ भी अपना व्यक्तिगत मामले आप उसमें दखल देने नहीं देते हैं, ओके।
तो इस प्रकार से आप कैद हो जाते हैं और फिर आपका बॉस कैद रहता है कि वो आपको मंथ एंड की सैलरी दे, जो आपने मेहनत की है उसकी वो आपको रिवॉर्ड्स दे, प्रमोशंस दे। वो कैद रहता है कि वो आपसे काम करवा रहा है तो आपका काम का वो मुआवजा भी, उसका जो भी देना है वो उसने देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि आप कैद में है, परमेश्वर के कामों में कैद है आप। ओके, तो पौलुस कहता है, देखिए अंकुर नरुला मिनिस्ट्रीज को आप देखेंगे वो कैद में है प्रेरिताई के काम करने में। प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी के मिनिस्ट्री को देखेंगे वो कैद में है भविष्यवाणी के सेवा में। ओके, और हमारे पास देखेंगे हम कैद में है मिशनरी काम पूरा करने के। ओके, हम मसीह है तो हम कैद में है मसीह का कुछ ना कुछ हम करने में। ओके, तो हमारा पूरा तन मन धन, हमारी सोच, हमारे सब जो भी है पूरी तरह से एक मन करके, एक शक्ति बनाकर हम सिर्फ जो मसीह को पसंद है उसमें हम उंडेलते हैं और मसीह को प्रॉफिट होगा, लाभदायी होगा, ऐसा ही सिर्फ हम अपने अंदर व्यवहार बनाए रखते हैं। हालेलुया, हम कैद है मसीह के। वो चाहता है उस काम को पूरी तरह से करने के लिए हम कैद है। ओके, वो चाहता है उस तरह से हमारा जीवन वो इस्तेमाल करने देने के लिए हम कैद है। वो कहेगा ये दाएं नहीं बाएं है तो हमको कैद है, हम वही बोलेंगे जो वो कह रहा है। बॉस इज ऑलवेज राइट। ओके, जो मालिक होता है, जो स्वामी होता है, वो चाहे गलत भी बोल रहा हो तो उसके सामने हम मुंह नहीं खोल सकते हैं क्योंकि हम उसके बंदी हैं। ओके, तो इस प्रकार से हमारे जीवन का अर्थ बनता है मसीही जीवन का। हम कैद में है जब ये पता चलेगा तो हम अपने सारी शरीर की वासनाओं को नज़रअंदाज करके मसीह को जो चाहिए वही हम अपने ऊपर जिम्मेदारी उठाकर चलते हैं। हालेलुया। और देखिए, जब आप मसीह के अंदर कैद है तो मसीह की सिखाई बातों में आप चलने के लिए कैद है, तो इसका मतलब क्या बन जाता है कि आप शरीर की वासनाओं में चलने के लिए आज़ाद नहीं है। ओके, फिर अगर आप कंपनी के अंदर, अगर आप आपके बॉस की नहीं सुनोगे और आप अपने जो मनमानी है उसी के आधार से आपकी धुन में चलते रहेंगे तो फिर कंपनी को आपका लाभ नहीं है और ना ही आपके बॉस को आपसे आनंद आएगा। तो फिर आप क्या हो जाएंगे, वहाँ से रफा दफा कर दिया जाएगा। ओके, आपको वहाँ से हटा दिया जाएगा। अगर आप वहाँ से हटाए नहीं जाएंगे तो भी आपको साइड कॉर्नर में रख दिया जाएगा ताकि आप दूसरे जो पूरे उत्साह के साथ बॉस के फ़ायदे करा रहे, कंपनी के फ़ायदे कराए, उनके बीच में आड़े ना आ जाए आप। ओके, तो वही हो जाता है, फिर बैकस्लाइड हो जाता है मसीह जब वो यीशु के फ़ायदे की काम नहीं करता है, मसीह के लाभ के काम नहीं करता है, मसीह के लाभ में वो अपने आप को रिलीज़ नहीं करता है, दे नहीं देता है, कैद होने का वो मतलब नहीं समझता है। तो फिर यहाँ पर आपको साइड ट्रैक में रख दिया जाता है ताकि आप दूसरों के उत्साह जो मसीह में बढ़ रहे आप उनको दखल ना दें। ओके, तो उसको बोलते हैं फिर बैकस्लाइड हो गया, वो इंसान पीछे हट गया मसीह में से। ओके, तो इस तरह से हमारा कैद हमने समझ लेना है कि मसीह में आना मतलब हम अंधकार के कैद में से तो आज़ाद हो गए लेकिन मसीह के भी हम कैद ही बने हुए हैं। ओके, लेकिन अंधकार का कैद भारी था। ओके, भारी दबाव से भरा हुआ, भारी मुश्किलों का सामना था, भारी प्रकार का मतलब हमारी पूरी ऐसी की तैसी हो जाएगी, इतना ज़्यादा हमारे ऊपर दर्दनाक
समय रहता था, ओके, अंधकार के शक्तियों का। लेकिन मसीह के अंदर जब हम आते हैं तो हमारे ऊपर सौम्य दबाव रहता है। सौम्यता से परमेश्वर हमको चलाता है, सिखाता है, समझाता है, प्रेम करता है, हमें सहानुभूति से भी वो अपने पास रखता है, दया के साथ हमको अपने साथ रखता है, हमारे ऊपर ज्यादती नहीं करता है, हमारी सारी ज़रूरतों को समझता है। एक अच्छा स्वामी जैसा होना चाहिए, ओके। एक अच्छा बॉस जो रहता है वो हमेशा अपने काम करने वालों का बहुत सही तरह से उपयोग करता है और उनका वो कभी भी नुकसान हो और उनसे कम काम निकलेगा ऐसा वो नहीं करता है, ओके। उनको वो सही एटमॉस्फेयर देता है, वो अपनी तरफ से वो सब कुछ सही तरह से उनके सारे सेटिंग रखता है ताकि वो जो काम करने वाला है वो अपने अंदर के बहुत ज़्यादा हुनर और बढ़ा कर कंपनी को लाभ दे और उसे ज़रा भी नुकसान का डर ना रहे। इतना बॉस एटमॉस्फेयर को एकदम सहज बनाकर देता है, ओके। जब मुश्किल समय है, जब सहज अवस्था नहीं हो सकती है, वहाँ पर गंभीर अवस्था रहने की ज़रूरत है, तो बॉस गंभीर रहने के भी अवस्थाओं को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेता है ताकि वो काम करने वाला उस बोझ के नीचे रहने के बावजूद वो कभी भी नहीं डरेगा, ओके। जो बोझ असहनीय है लेकिन फिर भी वो हियाव हिम्मत नहीं छोड़ेगा, वो पार होने का उसका रास्ता बीच में छोड़ नहीं देगा, ओके। तो इस प्रकार से अच्छा स्वामी काम करता है। तो वैसा ही हमारा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हमारा जो है वो स्वामी है, वो हमारा मास्टर है, वो हमारा बॉस है। तो फिर वो हमारे ऊपर जो रखा है काम करने के लिए, हम उसको लाभदायी बनने के लिए हमारे ऊपर जो सौंपा है उसने, वो बहुत सौम्यता से हैंडल करता है, आसान तरीके से हमारे एटमॉस्फेयर हमको देता है ताकि वो काम हम भरपूर पोटेंशियल में भरपूर तरह से हमारे अंदर से पूरी ताकत से ज़ोर से हम उसके कामों को करके दे और हम परमेश्वर को आनंदित करें, हमारे स्वामी को हम आनंदित कर सके, ओके। हमको ज़रा भी डर नहीं रहता है, हमें ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं रहती है, हम पार होने की आशा कभी टूटते नहीं है, हम पूरी मुश्किल पूरी सामर्थ्य के साथ पार करके निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा स्वामी वो एटमॉस्फेयर को हैंडल करना जानता है, ओके। हमारा भरोसा है कि हम पार इसीलिए होंगे क्योंकि हमारा स्वामी सही हैंडल करता है, ओके। जिसका टीम लीडर के ऊपर भरोसा है, ओके, वो लीडर को पूरी तरह से फ्रीडम देता है उस टीम मेंबर्स का वो इस्तेमाल करे। अगर टीम लीडर बोलेगा ये ईस्ट नहीं वेस्ट है, ये पूर्व नहीं ये पश्चिम है, भले ही वो गलत कह रहा है तो भी उसकी अगुवाई को ये काम करने वाले मेंबर्स कभी भी विरोध नहीं करेंगे, ओके। क्योंकि उनको पता है कि ये बोलने के पीछे इसका कुछ ना कुछ रहस्य है जो समय के बाद हमको वो ज़रूर बताएगा। इसके लिए यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे दोस्त हो, मित्र हो, क्योंकि मित्र को सारी गुप्त बातें शेयर की जाती है, बताई जाती है, लेकिन नौकर को नहीं बताया जाता है, ओके। तो हम प्रभु यीशु के साथ मित्र के साथ हैं। तो इसका मतलब हम जब बॉस और हम काम करने वाले लोग ऐसे जब रिश्ता है तो फिर भी बॉस हमेशा अपने काम करने वालों के बीच में मित्र भाव रखता है, ओके, ताकि वो उसके पास जो है वो शेयर करके उनकी उन्नति कर सके, ओके। जो काम करने वाले हैं उनकी वो उन्नति कर सके और उनको वो हौसला दे सके और उनकी वो ताकत बढ़ा सके ताकि वो ज़्यादा लाभदायी बने उसके कंपनी के लिए,
ओके, और वो दोनों बेनिफिट्स में चले, दोनों फायदे में चले। ठीक है, तो इस प्रकार से एक अच्छा मास्टर रहता है। और इसके लिए परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कहा कि बोझ से दबे हुए मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। तो ये बोझ जो दुष्टता के जगत का था, वो कहता है तुम्हारा बोझ जो है वो भारी है। ओके, मेरा जुआ, मेरा बोझ जो है वो हल्का है। ओके, और मैं तुम्हें नम्रता सिखाऊंगा, मुझसे तुम नम्रता सीखो। ओके, तो हम परमेश्वर के बोझ को उठाने के काबिल परमेश्वर हमको तैयार करता है। वो हमारे बुद्धि को वो सारा सत्व देता है, वो सारा पोषण देता है जो हमारे बुद्धि का रहना हमारा परमेश्वर को लाभ देने के लिए उपयोग कर सके। हमको ज्ञान का वो इतना मात्रा देता है कि इतना ज़्यादा हमारे अंदर वो ज्ञान दे देता है कि हम जो हमारे ऊपर सौंपा गया है वो भले तरह से हम बड़े मात्रा में, बड़ी शक्ति के बाहर जाकर हम परमेश्वर के राज्य को लाभदायी बन सके। ओके, हमारे अंदर वो समझ की मात्रा को इतना ज़्यादा पोषण देता है, इतना ज़्यादा वो भरपूर कर देता है, ताकि हम उसका इस्तेमाल करने के वक्त में हम ज़रा भी परमेश्वर के विरोध नहीं जाएंगे और परमेश्वर को दुखी और खेदित नहीं करेंगे। ओके, जैसा परमेश्वर ने कहा, मैं तो मनुष्य को बनाकर पछताता हूँ। ओके, उत्पत्ति के 6 अध्याय में लिखा, क्योंकि मनुष्य ने पाप बढ़ा दिया था, दुष्टता बढ़ा दी थी पृथ्वी के ऊपर, उसने अपने चाल चलन बिगाड़ लिए थे। ओके, तो इसके लिए परमेश्वर कहता है मैं पछताता हूँ मनुष्य को बना के। तो हमारा स्वामी जब हमारे अंदर ज्ञान दिया है, बुद्धि दिया है, समझ दिया है, और फिर वो कह रहा है देखो वो फल नहीं खाना जो भले बुरे ज्ञान का है, क्योंकि जिस दिन उसको तुम खाओगे निश्चित तुम मर जाओगे। तो अब हम कैद में हैं तो ही हम वो फल नहीं खाएंगे। ओके, क्योंकि सिर्फ कैद में रहना जिसको पता है वही जानता है कि उसके पास स्वतंत्रता नहीं है कि वो उस स्वामी की आज्ञा तोड़े जिसने उसको आज्ञा मानने के लिए कहा है। ओके, तो आप ऐरे गहरे नहीं हैं, आप कैद में हैं मसीह के। इसके लिए आप जब मनमानी करते हैं तो वो उड़ाऊ पुत्र के समान हो जाते हैं। ओके, जो कहता है ठीक है परमेश्वर मेरे लिए जो ठहराया गया है सब मेरे को दे दे और मैं चला जाता हूँ, मेरा हिस्सा जो है मुझे दे दे और मैं निकल जाता हूँ। तो उद्धार में आना मतलब आप परमेश्वर से सिर्फ उसके बेनिफिट्स लेने के लिए आए हो और परमेश्वर को कहते हो कि मैं तेरा कुछ काम करने के लिए और तुझे लाभ देने के लिए नहीं हूँ, मैं अपने शरीर के वासनाओं को पूरा करने के लिए हूँ। बस तो मेरे लिए जो है वो दे दे, मुझे चंगाई चाहिए दे दे, और मुझे जो चाहिए वो जो मेरा है ठहराया हुआ है मेरे हक का है। आप प्रभु में आते हैं, परमेश्वर के राज्य में आते हैं, तो आपकी चंगाई परमेश्वर की ओर से होती है, आपका प्रोविजंस, आपको सब कुछ जो आपकी देखभाल है वो सब पोषण जो है वो परमेश्वर से होता है। तो आप बोलते बस मेरा ये सब कुछ कर दे और मुझे छोड़ दे, बाकी मैं तेरे काम नहीं करना चाहता हूँ। ओके, और वो निकल जाता है और फिर वो क्या हो जाता है, पिता भी उसको दे देता है उसकी प्रॉपर्टी। ओके, लेकिन वो करता क्या है उसको लेकर? ओके, वो क्या किया, जाकर सुअरों का खाना खाने बैठा, इतना ज़्यादा उसका परिस्थिति खराब हो गया। ओके, तो आपको लगता होगा कि मसीह में है और फिर भी आप शरीर के वासनाओं को लेके मज़े उड़ाओगे। ओके, जैसा मन चाहा वैसा आप पैशन में जियोगे, जो मन चाहा आप उसके पीछे हो लोगे। तो आप शरीर की मूर्खता के कारण क्या करने जा रहे हैं, सुअरों के समानता में जाके बैठ जाते हैं और फिर वहाँ बैठ के आप जब तड़पने लगते हैं, आपको कुछ प्राप्त नहीं हो रहा होता है, आपकी सफलता नहीं आ रही होती है, आप लड़खड़ाने लगते हैं, डगमगाने लगते हैं, ख़त्म होने के चक्कर में हो जाते हैं और
फिर वहाँ बैठ के आप सोचने लगते हैं, अपने पिता के घर में था तो मेरे तो दास जो है पिता के, वो भी ऐसा खाना नहीं खाते जो अभी मैं खा रहा हूँ। ओके, वो भी भले चंगे तरह से अपने खाना खा लेते हैं और वो काम के मज़े भी लेते हैं। यहाँ तो ना ही काम का कोई मज़ा है और ना ही मुझे कुछ खाने पीने की अवस्थाओं में कुछ भी रौनक है। ओके, तो इस प्रकार से आप जिस अवस्थाओं के नीचे निकल जाते हैं शरीर के वासनाओं के साथ, उस अवस्था उस सुअरों के बीच में हो जाती है और वहाँ पे बैठ के आप देखते हैं बाकी सब तो आनंद कर रहे हैं मसीह में, मैं ही क्यों ऐसा हूँ। क्योंकि आपने शरीर की वासनाओं को आपने खुद अपने साथ ले लिया है। ओके, मैंने क्या कहा, जो कैद में है वो अगर जानता है कि मैं कैदी हूँ तो वो अपने स्वामी के विरोध जाने की हिम्मत भी नहीं करता है। या तो उसको पनिशमेंट का डर रहता है या फिर उसको ये बात का ख्याल रहता है कि मेरे स्वामी को मैं दुख ना दूँ। ओके, या तो वो प्यार से कैद में रहता है या फिर वो डर के मारे कैद में वो काम नहीं करता है जो परमेश्वर जो स्वामी के विरोध रहता है। या तो वो प्रेम के कारण विरोध नहीं करेगा या फिर वो डर के कारण विरोध नहीं करेगा। ओके, और जिसके अंदर ये दोनों भी नहीं है, ना ही डर है और ना ही प्रेम है, तो वो उड़ाऊ पुत्र के समान हो जाता है। ओके, बाकी सब तो सब कुछ ले रहे, सब कुछ मज़े कर रहे, सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है, कोई उनको डर नहीं, कोई उनको प्रॉब्लम नहीं, पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, सब कुछ मज़े में चल रहा है, सब कुछ उनका बहुत अच्छा चल रहा है, फिर मेरे ही साथ ऐसे क्यों हो रहा है। तो आप क्या कर दिए, आप शरीर की वासनाओं को आराम से अपने अंदर लेकर चले गए, रास्ता छोड़ दिए। कंपनी में हो आप लेकिन साइड ट्रैक कर दिए गए। ओके, ताकि आप दूसरों को परेशानी में ना डालें, आप दूसरों का उत्साह कम ना करें। आमीन। तो इस प्रकार से हम शरीर के वासना उड़ाऊ पुत्र के समानता में हो जाता है और कैद में ना रहने का अवस्था वही होता है। कैद में हम मंजूर नहीं करते हैं जो परमेश्वर कहता है, तो मृत्यु निश्चित है परमेश्वर कहता है। मृत्यु का मतलब वो आप जो उड़ाऊ पुत्र के साथ आप देखते हैं वो मृत्यु का असर है। ओके, सब कुछ डिम हो जाता है, डल हो जाता है, पूरा लाइफ अंधेरा हो जाता है, लाइफ के अंदर का हर एक चमक खत्म हो जाता है, हर प्रकार का सब प्रकार की शुद्धता मलिनता में बदल जाती है, सारा प्रकार का माहौल बिगड़ जाता है, मुंह में गालियां आती है, हृदय में कड़वाहट हो जाता है, आंखों में पूरी प्रकार की वासनाएं हो जाती है, पूरे बदन में कुछ ना कुछ रगड़े झगड़े मचलते रहते हैं, कोई स्थिरता नहीं, कोई शांति नहीं। और परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें शांति दे रखी है, ऐसी शांति जो जगत में तुम्हें नहीं देता है। ओके, तो आपके अंदर का शांति का माहौल आप यूज नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो आपके लिए अब मौजूद नहीं है। हालेलुया। शरीर की वासनाओं के साथ आप चले जाते हैं मसीह होने के बाद भी, तो वो आप कैद से आप मानते नहीं है कि आप कैदी हो। ओके, आप उड़ाऊ पुत्र के समान सिर्फ चाहते हैं मुझे धन मिल जाए, मुझे संपत्ति मिल जाए, मुझे प्रॉपर्टी मिल जाए, मुझे जो मन चाहा है, मेरे शरीर को जो ललचाता है वो सब कुछ मिलता रहे, बस बाकी छोड़ो। क्या है सुसमाचार सुनाना, क्या है बाइबल रीडिंग करना, क्या है प्रार्थना करना। तो आप कैद में होते हुए भी आप कैद को मानना नहीं चाहते हैं। ओके, तो आपकी अवस्था कहाँ हो जाएगी, जहाँ पर मृत्यु की सी अवस्था है। ओके, तो इस प्रकार का मसीह जीवन हो जाता है, बदतर हो जाता है और बिल्कुल उसके अंदर कोई भी रौनक नहीं। और फिर लोग क्या कहते हैं, वो लोग भी मसीह है, आप भी मसीह है, लेकिन आप तो कभी हमको ऐसे प्रकार से इतना जोश में कभी दिखाई नहीं दिए।
वो लोग देखो कितना जोश में है, वो लोग देखो कितना प्रार्थना करते हैं, उनके कारण तो हम लोगों को भी मसीह होने का मन होने लगा है। और आप तो सालों साल हमारे बाजू में है, फिर भी हमको मन नहीं होता है मसीह होने का। ओके, तो ये क्या हो गया? क्योंकि वो मसीह जो दूसरों को प्रभु में आने का जरा भी उत्साह नहीं है उनके अंदर, तो फिर परमेश्वर के काम वो नहीं कर रहा है। उसका शरीर पूरी तरह से वो जीवन जी रहा है, और शरीर जीवन तो दुनिया वाले लोग भी जीते हैं। रगड़े झगड़े तो दुनिया वाले भी करते हैं, झूठ तो दुनिया वाले भी बोलते हैं, व्यभिचार तो दुनिया वाले भी करते हैं। ओके, पाप तो दुनिया में पानी की तरह पिया जाता है, और आप अगर उनके जैसे काम करोगे तो आप और वो फर्क नहीं दिखता है उनको। ओके, और फिर वो बोलते हैं क्या जरूरी है मसीह होने का। ओके, लेकिन जब फर्क लाने वाला कोई मसीह वहां पर जलता हुआ आग में, परमेश्वर के जलती हुई आग से भर के उनके बीच में आके हो जाए, फिर ओके हो जाए, फिर उनके मुंह से क्या निकलता है सुनिए, मैं मसीह बनना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो वो एरिया ऑफ लाइफ जिसके बारे में हमने कल पढ़ा था कि अकेला जगह, अकेला हमारे आत्मा के अंदर जो अकेला, ये एक जगह का नाम है हमारे अंदर, उस जगह के अंदर एक जलता हुआ मसीह ही पवित्र आत्मा को ला सकता है। ओके, उसका सिर्फ वहां रुकना ही काफी हो जाता है। ओके, जैसा आप देखते हैं कि जब प्रॉफिट जी या फिर अपोस्टल जी ये जब पुलपिट के ऊपर आने का समय रहता है, ओके, उस समय वो आए, अगर वो कैंपस में हो या ना हो मुझे पता नहीं चलता है, लेकिन वो अगर मेरा ध्यान भी नहीं रहेगा तो भी मैं समझ जाती हूँ यस, ओके, ये परमेश्वर के जन यहाँ मौजूद है। ठीक है, एक दिन मैं अपने कमरे में हॉल में बैठ के, पुराने समय है, बहुत साल पहले की बात है, अलग जगह में हम रहते थे और कुछ समय के लिए हम वहाँ रह रहे थे। तो मैं एक दिन परमेश्वर से कुछ विपत्तियों की बातें शेयर कर रही थी बैठ के, और मैं परमेश्वर को बोल रही थी, पिता ये विपत्ति को पार करना मुझे नहीं आता है, मैं नहीं जानती हूँ इसके विषय में क्या करना है, और कुछ तो इंतज़ाम कर परमेश्वर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं कम से कम सुबह उठने से लेकर सब फ्रेश वगैरह होकर मैं हमेशा एकांत में बैठकर परमेश्वर से बातें करते रहती हूँ। तो वैसे बातें करते करते सुबह के 10 साढ़े 10 बजे थे, समझ लीजिए 9 के आगे का समय आ चुका था, और मेरे अंदर से मैंने महसूस किया मेरी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुन लिया, ओके, और मेरे लिए इंतज़ाम कर दिया, और मैं एकदम कॉन्फिडेंट हो गया मेरे अंदर से, क्योंकि मैं भांप रही थी कुछ ऐसा इस जगह में आ चुका है जो बंधन तोड़ने की सामर्थ्य रखता है। ओके, और अचानक मेरे दरवाजे के ऊपर, मेरा दरवाज़ा खुला हुआ था, ऐसे ही हम बैठे हुए थे, मैं अकेले थी, लेकिन दरवाज़ा मैं ऐसे ही अच्छा से खोल के रखा था हवा आने के लिए। तो बहुत पुरानी बात है, मैं यहाँ रह रही हूँ, यहाँ की बात नहीं है ये, ओके। वो जगह में वहाँ पे अचानक कोई इंसान ऊपर जा रहे थे, और वो ध्यान जा रहे थे, और मैंने देखा, पहले खिड़की में से नीचे देखा कि वो लोग कुछ काम कर रहे हैं, और अब मैंने ध्यान नहीं दिया तो वो लोग ऊपर जाने निकले और मुझे पानी मांगा जाते जाते। तो मैंने बोला ठीक है आप रुक जाइए, मैं पानी देती हूँ, आप आ जाइए। तो उन्होंने कहा आप बिलीवर है? मेरे पता नहीं उनको कैसे पता चला, कुछ शायद बाइबल वगैरह देखा होगा उन्होंने, टिपॉय पे वगैरह। तो वो पूछा, तो मैंने बोला हाँ। फिर उन्होंने कहा हम भी बिलीवर है। तो मैंने कहा फिर आप बाहर क्यों खड़े, आप घर के अंदर आइए, आराम कीजिए, पानी पीजिए, फिर आप ऊपर जाइए। तो
वो बैठे मेरे साथ, पानी लिया और मुझे उन्होंने अपने बारे में बताया और उन्होंने बताया कि हम पास्टर हैं, पास्टर और पास्टर के वाइफ, ऐसे तो उनकी वाइफ आए थे सिर्फ, तो वो बोले हम पास्टर हैं और यहाँ पे हमने रूम लिया है और हमको प्रभु ने अगुवाई किया कि यहाँ पे रूम ले। एक्चुअली वो जगह में वो रूम जो है वो इतना टॉप फ्लोर में था, एकदम ऊपर था, जहाँ कोई नहीं ज़्यादा आता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग नीचे के फ्लोर्स ज़्यादा लेते हैं, टॉप फ्लोर कोई लेता नहीं है। तो वो कंप्लीट फ्लोर के अंदर वो एक अकेले फैमिली आए थे और उन्होंने, पैसे नहीं थे उनके पास, वो लेने का अवस्था भी नहीं था, फिर भी परमेश्वर ने, वो कह रहे हमको मालूम नहीं क्या प्रॉब्लम है परमेश्वर का, कि हमको बोला कि वो पहले वाला रूम छोड़ दो और इस जगह में आओ। और यहाँ आने के बाद हमने इतने सारे मेहनत से हमने ये ले तो लिया है, लेकिन प्रभु का उद्देश्य क्या है हम नहीं जानते हैं। आमीन। और वहाँ मेरी ज़रूरत थी, क्योंकि पूरी उस जगह में इतना कुछ मैंने हैंडल कर लिया था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था अब इसके आगे मैं कैसे जाऊं। क्योंकि जब आप शत्रु के साथ युद्ध छेड़कर वहाँ पर आत्माओं को जीतना शुरू कर देते हैं, तो शत्रु भी अपनी ताकत जोर ऊंचा कर देता है ताकि हमारे कामों को बंधन में डाल दे। ओके, तो उस जगह में काम तो बंधन में नहीं पड़ रहे थे, लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ पा रही थी। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पर्सनली मुझ पर अटैक्स आने लगे थे, पर्सनल, व्यक्तिगत में। ओके, व्यक्तिगत के अवस्थाओं में चेंजेस हो रहे थे। तो मैंने बोला लॉर्ड, अगर ऐसे चेंजेस, जैसा अभी आप कमेंट में लिखते हैं कि मुझसे प्रार्थना नहीं हो रही है, मुझे तो नींद आ जाती है, ये ऐसे व्यक्तिगत पर्सनल, लेकिन ये तो बहुत साधारण है जो आप बता रहे, मेरे साथ जो हो रहा था वो बहुत ही बेकार था। ओके, तो उस समय की बात है, वहाँ पर परमेश्वर ने उनके कैद में, परमेश्वर के कैद में जो आज्ञा पालन करने वाला इंसान था, वो बोल रहा है मैं नहीं जानता क्या प्रॉब्लम है परमेश्वर को कि मुझे वहाँ से निकाला और यहाँ पे लाके रख दिया। ओके, हम तैयार है यहाँ पर रहने के लिए और हमने ऐसे ले लिया है घर। अच्छा हुआ हमको पता चला यहाँ पर आप भी है। मैंने बोला आपको, मतलब मैंने मन ही में बोला, उनके सामने नहीं बोला, कि आपको पता नहीं है कि यहाँ पे मैं उस पॉइंट पे पहुँच चुकी थी कि अब मुझे पता नहीं नेक्स्ट क्या होने वाला है। ओके, क्योंकि मेरा दिमाग तो चल नहीं रहा है, मुझे दिमाग चलाने के लिए जोर देने वाला कोई चाहिए। ओके, तो परमेश्वर ने वो इंतज़ाम भेजा। फिर मैंने अपना बैटल नीचे रखा, आगे का बैटल उन्होंने उठाया, मैंने फिर नेक्स्ट रोड पकड़ लिया, मैंने अलग रास्ता पकड़ लिया। मैंने वो रास्ता पकड़ा जो मुझे ये बैटल से फ्री करके, जो मैं जा रही थी, जहाँ तक मैं पहुँच चुकी थी, वो अब मेरे लिए नहीं है, वो लोग संभालने के लिए ले लिया हुआ था। अब मैंने वहाँ से अपना बैटल बंद करके मैंने अपनी उन्नति में रास्ता लेना शुरू किया। मतलब मेरा बैटल और उन्नति दोनों साथ में नहीं था, तो फिर इसके लिए परमेश्वर ने मुझे थोड़ा सा आराम दिया ताकि मैं बाइबल स्टडी कर सकूं, वहाँ से मैं आराधना कर सकूं। तो मैंने इतना ज़्यादा आराधना, बाइबल रीडिंग, प्रार्थना, इतना ज़्यादा पर्सनल वे में उन्नति में उठा लिया कि फिर दोबारा मैं युद्ध के लिए तैयार हो गई। फिर दोबारा वहाँ से निकलने के बाद में मुझे ज़रूरी नहीं लगा कि कोई मेरे साथ रहे और एक बार। ओके, ऐसा परमेश्वर कैद में रहने वालों का एक दूसरे के लिए लाभदायी इस्तेमाल करता है। ये कारण से आपको कैद में होना बेहद ज़रूरी है माय फ्रेंड्स। ओके, प्रभु परमेश्वर के कैद में आप हो तो आप शरीर की वासनाओं को नहीं करना है। आमीन। शरीर की अवस्थाओं को आप टालना सीखिए, क्योंकि आपको है वासनाएं, तो इसका मतलब ये नहीं बनता है कि आप वासनाएं हैं तो आप शरीर के वासनाओं को इम्पोर्टेंस दे, ज़रूरत समझे, मत समझिए ऐसा।
आप जब आपके कंपनी में होते हैं, जैसे आप एक उदाहरण के लिए मैं बोल रही हूँ, परिवार से अलग जाते हैं, दुबई में जाके आप या फिर कोई अब्रॉड जाके आप नौकरी कर रहे होते, तो आप और परिवार अलग अलग रह रहे हैं। तो फिर इसका मतलब क्या बन जाता है कि आपके बच्चों को, आपके पत्नी को, आपके पति को जो भी जैसे भी अवस्थाओं का पोषण होना चाहिए था वैसा आप नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन आप पैसे भेज रहे हैं, लेकिन आप कर्ज उतार सकते हैं, लेकिन आप कुछ नई चीज़ें खरीद सकते हैं, बाकी बेनिफिट्स आप दे सकते हैं, लेकिन जो फैमिली का पोषण होता है उसमें से तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। ओके, इमोशनल पोषण जो रहता है उसमें तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, मॉरल जो रहता है उसमें तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। ओके, तो फिर आप वो एरिया ऑफ लाइफ को क्या कर दिए ताकि आपका कर्ज उतार दिया जाए, इसके लिए अब्रॉड में जाके नौकरी करना स्वीकार लिए। ओके, ताकि आपका कुछ चेंजेस आ जाए, नई चीज़ें आप खरीद सके, इसके लिए जाके अब्रॉड में आपने पैसे कमाना शुरू किए। ओके, ताकि आपके भविष्य में आपके बच्चे पढ़े लिखे अच्छी ऊंची पद पर जाए तो उनके लिए लगने वाला खर्च आप इकट्ठा कर सके या शादी ब्याह हो सके बच्चों के, इसके लिए आपको अब्रॉड में जाके बैठना पड़ा ताकि आप वहाँ से कुछ अच्छे कमाई, अच्छी पैसे की रकम बनाकर आपके परिवार को दे सके। लेकिन फिर आपके परिवार का इमोशनल हालत और मॉरल हालत खत्म, क्योंकि लोग एक दूसरे के बीच में रहकर इमोशनली हील्ड हो जाते हैं, है ना। हम मॉरली एक दूसरे का साथ पाकर हमारे अंदर हियाव बना रहता है, वो तो खो गया आपका, है ना। तो इसका मतलब क्या क्या वो ज़रूरी नहीं था आपके परिवार को, ज़रूरी था, लेकिन उस बात को आपने छोड़ना ज़रूरी समझा ताकि बाकी बेनिफिट्स आप दे सके, है ना। तो आपने क्या कर दिया, आपके पास है देने के लिए, इमोशनली मॉरली आपका वो ताकत है, लेकिन आपने उस ताकत को क्या कर दिया, ज़ीरो कर दिया, ज़ीरो। ओके, और दूसरी ताकत में आप हीरो बन गए, जैसे पैसे कमाने की ताकत में आप हीरो बन गए। अब आपके परिवार को पैसों की ज़रूरत की कमी नहीं है। ओके, पैसों का पूरा काम पूरी तरह से आराम से हो जाता है, क्योंकि आपका अब्रॉड में रहने से उनके हर एक सिचुएशन में आप भरपूरी से आप दे पा रहे हैं, आपके कर्ज उतार रहे हैं, आपको कोई टेंशन नहीं है पैसों के बारे में। हाँ, नौकरी अगर जाएगी तो फिर आपको टेंशन हो जाएगा, क्योंकि आपका पूरा बुद्धि, ज्ञान, समझ, पूरी एक शक्ति बनाकर पैसे कमाने के पीछे आपने लगाया है। अगर ये जॉब छूट जाए, दोबारा आपकी शक्ति, आप पूरी तरह से एक मन बना के दूसरा जॉब मिलने तक आप हैरान परेशान हो जाएंगे। ओके, आपकी चिंताएं आपको मार भी डालेगी, है ना। तो इतना पैशनेट होकर आप एक चीज़ के पीछे चले जाते हैं ताकि आपके बाकी काम पूरे हो जाए, है ना। तो इस प्रकार से आप कैदी बन जाते हैं पैसे कमाने के, ताकि आपके परिवार की तसल्ली हो जाए। आमीन। तो आप कैद में रहने का अर्थ समझ सकते हैं कि हमको सैक्रिफाइस करना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास वो सारी इच्छाएं नहीं है, आपके पास वो सारा मसला नहीं है जो आपको मनभावन लगता है, ऐसा नहीं है। ओके, बहुत कुछ है, लेकिन हम उसको ज़ीरो कर देते हैं ताकि हम मसीह के ज्ञान, बुद्धि, समझ में हीरो बने रहे। और जब हम उसमें हीरो बने रहेंगे तब आपको पता चला किस प्रकार से वो पास्टर को मेरे बिल्डिंग में टॉप फ्लोर में, जहाँ कोई रहता नहीं है, वहाँ जाके रहना पड़ा। ओके, इस प्रकार से परमेश्वर कैद रहने वालों का इस्तेमाल करता है और दूसरे लोग उनके कारण प्रॉफिटेबल हो जाते हैं, और हम उसी के लिए कैद रहना है ताकि हम दूसरों के लिए प्रॉफिटेबल बने। आमीन। हम मसीही के अंदर से प्रॉफिटेबल बनना है, हम मसीह के ज्ञान, बुद्धि, समझ में कैद रहना है ताकि हम परमेश्वर के राज्य का प्रॉफिट कर सके। आमीन। तो इसकी वजह से हर एक मसीह आपको एक जैसा नहीं दिखता है।
ओके, किसी के पास अपोस्टल के ज्ञान है, किसी के पास प्रोफेसी का ज्ञान है, किसी के पास टीचिंग का ज्ञान है, किसी के पास पास्टोरल गिफ्ट्स का ज्ञान है। तो इसका मतलब क्या है, वो अपने अपने जगह में अपनी शक्ति पूरी एक करके अर्पण कर चुके हैं, ताकि उस लेबल को, उस टाइटल को वो भरपूर तरह से परमेश्वर को इस्तेमाल करने दें। ओके, अगर वो पास्टोरल के हुद्दे पर है, पोजीशन पर है, तो फिर वो अपने आप को एक शक्ति बनाकर इतना दे चुका है कि वो परमेश्वर को इतना फ्रीडम दे चुका है कि अगर परमेश्वर कुछ कहता है तो वो इनकार नहीं करेगा, चाहे फिर उसका खुद का कैसे भी नुकसान हो जाए, नो प्रॉब्लम। ओके, इस प्रकार से हम हर एक इंसान का कैद में एक अवस्था है। इसकी वजह से सबसे बड़ी हमारी जिम्मेदारी बनती है शरीर के वासनाओं में अपना जीवन नहीं जीना है। कैदी है, हम कैदी है। चलो कोई बात नहीं, अभी आपके पास कोई असाइनमेंट परमेश्वर का नहीं है, सिर्फ आप विश्वास के जीवन को जी रहे हैं, तो भी आप विश्वास के जीवन में कैद होने का ही रास्ता चलिए। जो कैद में चलने की अवस्था है वही चलिए। जो मसीह के वचन हमको कैद करके रखते हैं वही चलिए। ओके, जो मसीह के कैद से बाहर जाता है वो मृत्यु का रास्ता चला जाता है। उससे मसीह के लोगों को कोई लाभ नहीं है, और ना ही परमेश्वर के राज्य को लाभ है, और ना ही वो जगत के अंदर कुछ परमेश्वर का लाभ करा सकेगा। ओके, तो उसका जीवन फिर वही हो जाता है जिसे हम कहते हैं बैकस्लाइड। ओके, इस प्रकार से हमने ध्यान रखना है ये कैद का कितना अर्थ बनता है, कितना बड़ा वर्णन है ये कैद का, है ना। और एक बार पढ़ेंगे, 4 वचन से आगे जाएंगे। और उसे ऐसा प्रकट करूं जैसा मुझे करना उचित है। ओके, तो कैद में जिस काम के लिए वो समझ चुका है अपनी बुलाहट क्या है, तो वो कहता है उस बुलाहट के लिए अब मुझे ज्ञान रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ज्ञान के अभाव से मेरी प्रजा नाश हो जाती है, इसकी वजह से मुझे ज्ञान चाहिए। तो नीति वचन में आप पढ़ेंगे ज्ञान का विषय क्या कहता है, बुद्धि का विषय क्या कहता है, समझ का विषय क्या कहता है। ये सब कुछ हमको चाहिए, तभी निपुणता के साथ, पूरी कुशलता के साथ हम उस हुद्दे को, उस पोजीशन को हम बहुत हुनर के साथ परमेश्वर के सामने हम अपने आप को दे सकेंगे। ओके, परमेश्वर काम कर सकेगा हमारे अंदर से। ओके, तो आप अगर सिर्फ विश्वासी है तो अब आपका बड़े हुनर के साथ, बड़ी शक्ति के साथ इस कैद को आपने स्वीकारना है कि बाइबल रीडिंग करना है, प्रार्थना करना है, उपवास करना है, परमेश्वर की आराधना करना है, परमेश्वर का ध्यान करना है, स्मरण करना है, उसके भले बातों का धन्यवाद करना है, भले कामों को करना है। कैद में जो है वो आपको करना है। भले ही अभी तक आपके ऊपर कोई बुलाहट नहीं है, तो आप कैद में बने रहिए। जैसा उस पास्टर जी को भेज दिया गया था मेरे घर के बिल्डिंग के टॉप मोस्ट फ्लोर में जाके रहने के लिए, उस समय की बात है, मैं अभी की बात नहीं कर रही हूँ। तो वो समय उन्होंने कुछ भी उनका पॉसिबल नहीं था, इम्पॉसिबल था, उनको इतनी बेकार अवस्था रहते हुए भी इंतज़ाम करके वहाँ पे आना पड़ा था। तो वो मेरे लिए आए थे वहाँ पर, क्योंकि मैं वहाँ बैठ के परमेश्वर से बातें कर रही थी। आमीन। ऐसा कैद में रहने वाला इंसान बुलाहट को फिर कैच कर लेता है। ओके, और वो बुलाहट का बेनिफिट परमेश्वर को देता है। आमीन। और परमेश्वर रिवॉर्ड करता है। वो कहता है कि मेरे नाम से अगर आदर करके किसी ने आपको 1 गिलास पानी भी दिया तो भी मैं उसका प्रतिफल नहीं भूलूंगा, मैं उसको उसका प्रतिफल दूंगा। वो पानी देने वाले का प्रतिफल देगा। हालेलुया। तो इस प्रकार से आपका कैद में होना जीवन है, कैद तोड़कर अलग हो जाना मृत्यु है।
ठीक है। तो शरीर में आपका जीवन नहीं जीना है, शरीर की वासनाओं के लिए आपका जीवन नहीं जीना है, शरीर के उकसाए जाने पर आपका जीवन नहीं जीना है, शरीर के मन भावन के ऊपर आपका जीवन नहीं ठहरना है। आपका जीवन ठहरना है, क्या मैंने बाइबल रीडिंग किया, क्या मैंने प्रार्थना किया, क्या मैंने मनन किया, क्या मैंने कुछ किया परमेश्वर का, क्या मैंने परमेश्वर को जो लाभदायी है वो जीवन जिया, क्या मैंने परमेश्वर का आराधना किया, क्या मैंने परमेश्वर के धुन में जीवन जिया, ये आपके अंदर होना चाहिए। ओके, क्या आज मेरे बुद्धि में, ज्ञान में, समझ में कुछ बढ़कर आ गया परमेश्वर का, क्योंकि वही बात है जो हमको फिर परमेश्वर के काम करने के लिए मजबूत करता है। ओके, हमें बड़े पैमाने में, पोटेंशियल में, ताकत में हमें बढ़ाकर परमेश्वर के काम करने के लिए विस्तार देता है। ओके, एक्सपेंशंस देता है, स्प्रेड देता है। ओके, तन के तंबुओं को के खूंटे जो है वो तन के बांध, ऐसे कहा है, दूर तक उसको खींच के लेकर जा। तो हमने परमेश्वर के ज्ञान, बुद्धि, समझ को ज़्यादा दूरी तक लेकर जाना है, ज़्यादा दूरी तक हमारे अंदर उसे भर देना है, ज़्यादा मात्रा में भर देना है, ताकि हम परमेश्वर के काम में लाभ लेकर आ सके। ओके, निर्बुद्धि के समान नहीं करना है जो स्वामी को दुख पहुंचाता है। बुद्धिमान के समान हमारे स्वामी को हमने आनंदित करना है हमारे कामों से। आमीन। तो ये प्रकार से होता है। फिर 5 वचन से आगे पढ़ेंगे। जैसा 4 वचन कहता है, जैसा उचित है करना वैसा करने के लिए, उचित है जैसा वैसा करने के लिए, वो प्रार्थना करने के लिए कह रहा है। हालेलुया। तो 5 वचन से आगे, अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। ओके, तो आपके इर्द गिर्द के लोग मसीही नहीं है, वो बाहर वाले लोग हैं, है ना। तो उनके साथ वो कह रहा है बुद्धिमानी से व्यवहार करो, जिम्मेदारी दे रहा है आपको। तो बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी चाहिए, तो वो बुद्धिमानी को आपने तो अब सीखना पड़ेगा। अगर नहीं मालूम है किस तरह से, तो फिर आपने पवित्र आत्मा को मांगना है कि मुझे बुद्धिमानी बना, ताकि बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी के साथ मैं चल सकूं, व्यवहार कर सकूं। बुद्धिमानी के साथ बोला है, मूर्खता के साथ नहीं, बुद्धिमानी के साथ। ओके, मतलब आपके इर्द गिर्द बिना मसीह वाले लोग जो है, उनके बीच में आपका कुछ व्यवहार चलने वाला है, उसके लिए वो कह रहा है अवसर को बहुमूल्य समझो और बुद्धिमानी के साथ व्यवहार करो। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर आप ये 2 चीज़ें नहीं है आपके दिमाग में, आप बाहर वालों के लिए जस्ट एक प्रकार का शेपलेस, फॉर्मलेस, वॉइडलेस टुकड़ा है शरीर का। ओके, तो ऐसा नहीं बनना है। हमको बहुमूल्य समझने के लिए बोला है, समय को, और बुद्धिमानी के साथ व्यवहार करने के लिए कहा है, मूर्खता के साथ नहीं, निर्बुद्धियों की तरह नहीं। ओके, आप ये मत समझिए कि आप बिलीवर्स बन गए और आप कैसे भी व्यवहार कर पाएंगे। नहीं कर सकते हैं। ओके, किसी के साथ कैसे भी बर्ताव नहीं कर सकते, किसी के साथ कैसे भी आप कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। आपको बुद्धिमानी बरतनी पड़ेगी। अगर बुद्धिमानी क्या होता है अगर नहीं मालूम है, तो इस वचन को लीजिए और पवित्र आत्मा को बोलिए, ये क्या वचन है, इसके अनुसार मुझे रचना कर, नासरी यीशु के नाम में, आमीन। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करना चाहिए। ओके, क्योंकि ये कंपलसरी कमांडमेंट है हमारे लिए कि बाहर वालों के बीच में हम रह रहे हैं, निर्बुद्धि होकर नहीं रह सकते हम। आमीन। और समय को भूल कर नहीं रह सकते हैं। अब कौन सा समय चल रहा है? व्यभिचारी युग चल रहा है। तो हम समय को नहीं भूलना है कि ये व्यभिचारी युग है। ओके, प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये व्यभिचारी युग चल रहा है और इनको चिन्हों की ज़रूरत है, ये चिन्ह मांगेंगे आपसे। ओके, तो हमको इस समय के अंदर कैसे होना चाहिए, इसकी बुद्धिमानी हमारे अंदर होना ज़रूरी है। क्योंकि आप जिसके साथ भी व्यवहार में रहोगे इस जगत के अंदर,
कोई भी व्यवहार में, आप स्कूल में, कॉलेजेस में, फ्रेंड्स में, ओके, कलीग्स में, कोवर्कर्स में, आप कहीं पर भी रहो, तो आपके साथ संगति वाला मसीह नहीं है, तो आपको अवसर को बहुमूल्य समझना आना पड़ेगा और बुद्धिमानी होकर आप लोगों के रिश्तों के बीच में, आपके कामकाजों के बीच में आपको होना पड़ेगा। ये आपको ज़रूरी की है, चाबी है। अगर आप इसको लिए हुए नहीं चलेंगे तो आप अनलॉक नहीं कर पाएंगे परमेश्वर के प्रॉफिट्स को हमारे जीवनों में और दूसरों के जीवनों में। ठीक है, 6 वचन से आगे पढ़ेंगे। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलो ना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। ये सब कमांडमेंट है, 8, 5, 6 वचन कमांडमेंट है हमारे ऊपर। ये चौकसी रखना है हमने, ये करना है हमने। अंतिम अभिवादन 7 वचन से आगे। प्रिय भाई और विश्वास योग्य सेवक तुखिकुस, जो प्रभु में मेरा सहकर्मी है, मेरी सब बातें तुम्हें बता देगा। उसे मैंने इसलिए तुम्हारे पास भेजा है कि तुम्हें हमारी दशा मालूम हो जाए और वह तुम्हारे हृदयों को शांति दे। उसके साथ मैंने उनेसिमुस को भी भेजा है, जो विश्वास योग्य और प्रिय भाई और तुम ही में से है। ये तुम्हें यहाँ की सारी बातें बता देंगे। अरिस्तर्खुस, जो मेरे साथ कैदी है, हालेलुया, यानी समानता के कॉलिंग में है, बुलाहट में है, ओके, एक दूसरे के संगति को एक समान सुसंगति के साथ मानते हुए चल रहे समानता के कैदी है वो, ओके, जो मेरे साथ कैदी है। और मरकुस, जो बरनबास का भाई लगता है, जिसके विषय में तुमने आज्ञा पाई थी कि यदि वह तुम्हारे पास आए तो उससे अच्छी तरह व्यवहार करना। और यीशु, जो युस्तुस कहलाता है, तुम्हें नमस्कार कहते हैं। खतना किए हुए लोगों में से केवल ये हो, परमेश्वर के राज्य के लिए मेरे सहकर्मी और मेरी शांति का कारण रहे है। इपफ्रास, जो तुम में से है और मसीह यीशु का दास है, तुम्हें नमस्कार कहता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है, ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। मैं उसका गवाह हूँ कि वह तुम्हारे लिए और लौदीकिया और हियापुलिस वालों के लिए बड़ा परिश्रम करता रहता है। प्रिय वैद्य लूका और देमास का तुम्हें नमस्कार। लौदीकिया के भाइयों को और नुम्फास और उनके घर की कलीसिया को नमस्कार कहना। जब यह पत्र तुम्हारे यहाँ पढ़ लिया जाए तो ऐसा करना कि लौदीकिया को की कलीसिया में भी पढ़ा जाए, और वह पत्र जो लौदीकिया से आए उसे तुम भी पढ़ना। और अर्खिप्पुस से कहना कि जो सेवा प्रभु में तुझे सौंपी गई है उसे सावधानी के साथ पूरी करना। मुझ पौलुस का अपने हाथ से लिखा हुआ नमस्कार। मेरी जंजीरों को स्मरण रखना। तुम पर अनुग्रह होता रहे, आमीन। देखिए, आपके साथ संगति, जिन लोगों के साथ आप मिलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, आपका ज़्यादा समय उन लोगों के साथ होना चाहिए जिनके अंदर से आपके ज्ञान, बुद्धि, समझ का नुकसान नहीं होगा। क्योंकि आप कैद में हैं, आप परमेश्वर को प्रॉफिट दे रहे हैं, तो आपकी ज्ञान, बुद्धि, समझ, शक्ति पूर्ण रूप से हिफाजत में रख के आपको लोगों के बीच में होना चाहिए। ओके, तो आप अपने अंदर की ज्ञान, बुद्धि, समझ हिफाजत में रखोगे। आप देखो, जब जॉब करते हो, आपके ड्यूटी आवर्स ख़त्म होने के बाद आपको घर लौटना है, आप घर चले जाते, परिवार के साथ चले जाते हैं, और फिर अगर आप वहाँ पर आपके कंपनी में जो प्रॉफिटेबल नहीं है उन बातों में रहते हैं, ओके, आपको ज़रूरी नहीं लगता है फिर कंपनी का कैद को आप अपने ऊपर लिए फिरे।
आपका ड्यूटी आवर्स खत्म हो गया, अभी आपका पर्सनल टाइम है, अभी आपका शरीर का मनोरंजन का टाइम है। ओके, आपके शरीर को आनंद देने का टाइम है। तो आप मस्ती करेंगे, मजा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन समझो अगर आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को थका लिया और फिर आप नेक्स्ट डे दोबारा आपके ड्यूटी के ऊपर जाने के लिए निकलेंगे, तो आप बोलेंगे मैं तो भारी थका हुआ हूँ, अब तो मुझे नींद आ रही है, अब तो मुझे इतना थकावट हो रहा है कि अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं जाऊँ या नहीं, आज छुट्टी कर दो। ओके, तो ये क्या हो गया, आपके हुनर को हानि पहुंच गई, ऐसा समय आपने बिताया। हालेलुया। तो हमारी संगति का हमने उस तरह से इस्तेमाल करना है कि हमारी हानि ना हो, जिसके लिए हमको दोबारा कल सुबह उठकर काम पर उठ के चलना है, जिस मकसद में चलना है हम उसको हानि ना पहुंचाएं। ऐसा हमारा संगति होना चाहिए, ऐसा हमारा हम एटमॉस्फेयर मेंटेन करना पड़ता है। हमारे चाल चलन, हमारा उठना बैठना, लोगों के बीच में बोलना चलना फिरना घूमना, सब कुछ इतना मेंटेन करना पड़ता है कि हमारे अंदर जो मगज रखा हुआ है, ओके, जो गंभीरता रखी हुई है, ओके, उसको कोई भी ख़त्म ना करे। ओके, उसके विषय में कुछ भी हानि ना हो, वो पूरी तरह से हिफाजत में रहे, ताकि नेक्स्ट डे कंप्लीट पोटेंशियल में, कंप्लीट उत्साह के साथ दोबारा हम एक दिन हमारे कंपनी को, हमारे बॉस को आनंदित कर सके और लाभदायी बन सके। आमीन। इस प्रकार से हमको हमारे पर्सनल टाइम को भी इस्तेमाल करना आना चाहिए। ओके, आप पौलुस को देखे हैं कि वो कहता है मुझे आनंद दिया ये लोगों ने, मुझे शांति दी ये लोगों ने, मेरे लिए उत्साह बढ़ाया ये लोगों ने। ओके, और फिर वो हर चीज़ के लिए वो बोल रहा है इसने मुझे उत्साह दिया, उसने मुझे उत्साह दिया, ये मुझे अच्छा किया, वो मुझे अच्छा किया। तो ये बताता है कि उसकी पोटेंशियल किस प्रकार से हिफाजत में रख के लोग उसके इर्द गिर्द में वो बहुत चौकसी से रख रहा था। वो ऐरे गहरे ऐसे ही नहीं चल रहा था, उसके पोटेंशियल को हानि करने वालों से वो नाराज़ रहता था, लेकिन जो उसके पोटेंशियल को सुख देते थे वो लोगों को, उन लोगों को वो पसंद करता था और उनकी चर्चाओं में तारीफ़ें करता था। हालेलुया। तो हमारी पोटेंशियल को क्षति पहुंचाने वाले, हानि पहुंचाने वाले उन लोगों का हम हमेशा ही दुख व्यक्त करते हैं, ये पसंद नहीं करते हैं और दुख बताते हैं, हमको परेशान हुई वो बात बताते हैं। लेकिन जो पोटेंशियल को हमारे उत्साह दिए, बढ़ावा दिए और हमको और एक बार नए जोश के साथ बड़ी मात्रा में हम परमेश्वर के राज्य के लिए प्रॉफिटेबल बन पाए, तो फिर हम उनकी तारीफ़ें करते हैं। हालेलुया। हमारे चर्चाओं में हम उनको स्मरण करते हैं, जैसा यीशु मसीह ने कहा कि जो तूने काम किया है, वो स्त्री से कहा, जो उसने इत्र को यीशु मसीह के पैरों पर उंडेला, और जो लहू बहने वाली स्त्री है उसने जो गवाही को ले लिया यीशु मसीह से चंगाई का। तो वो दोनों को वही बात था कि तेरा याद किया जाएगा, तुम लोग जो विश्वास दिखाए तुमको स्मरण किया जाएगा। हालेलुया। तो आपकी चर्चाओं में वो लोग तारीफ़ें पाते हैं जिन्होंने आपकी पोटेंशियल को, आपकी हुनर को, जो परमेश्वर के काम करने का आपके अंदर का माहौल है, उसको डिस्टर्ब नहीं किया, बल्कि उसको प्रेरणा से भरा, उत्तेजित किया, उत्साह में रखा, और ताकि आप अगले समय के लिए तैयार रहे और ज़्यादा मात्रा में आप लाभदायी बने आपके वर्क प्लेस में। आमीन। तो उनकी चर्चाओं में हम तारीफ़ें करते हैं। हालेलुया। लेकिन जो चोट पहुंचाते हैं, हम दुखी कर देते हैं उनके साथ, उनकी चर्चाओं में हम जब उनकी चर्चाएं करते हैं तो हम उनके बारे में पसंद नहीं है ऐसी ही बातें बोलते हैं। आमीन। तो इस प्रकार से हमारी संगति का ध्यान रखना है। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद करते हैं, हमें फिट एंड फिक्स करने के लिए धन्यवाद करते हैं, हमें डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आने के लिए हम तुझसे मांगते हैं, नासरी यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन।